Hello students. Today we are going to start our next topic in the environment chapter. Okay, so first of all, before we starting our chapter, let us take a brief preview on the previous lectures. Okay, so first we have started from the biodegradable waste and the non-biodegradable waste. Such a waste are which are decomposed by itself or by the microorganisms are called as the biodegradable substances. Biodegradable waste is, and those substances which are not been decomposed by the microorganisms are called as the non-biodegradable substances or waste. Okay, and then we have seen the examples for the biodegradable waste and the non-biodegradable waste. Then we have studied about the ecosystem. Generally, there are two types of ecosystem. First one is the natural ecosystem. Second one is the artificial ecosystem. Then we have discussed about the components of the ecosystem. Then there were the two components of the ecosystem. First one is the biotic components and second is the abiotic component. In biotic components, we have studied about the living components like the plants, animal, microorganisms are called as the biotic components, and abiotic components are the non-living components of the environment such as the air, water, soil, mineral, sunlight, temperature, wind, etc. Then we have studied about the subtopics of the biotic component, that are the mainly producers, consumers and the decomposers. Generally producers are the green plants of the green plants which are which produces the food by the process called as the photosynthesis. Then the consumer, those who are dependent on the producers, is called as the consumer. We have already known about that. Then the decomposers are the decompose the dead plants and the dead animals are called as the decomposer. Okay, these types of study we have already done. Then we have studied about the food chain and the difference between the food chain and the food web. Okay, generally the food chain is always starting to end will be in the step by step procedure in the linear form. Okay, and the food web is the interconnected system of the food. Okay, so this will be also studied in the previous lectures. Is okay, these types of different types of terrestrial food chain we have discussed. Then marine food chain we have discussed, the primary producers, primary consumers, secondary consumers and tertiary consumers. These types of consumers also we have discussed in the previous lecture, as we already know about it. Okay, in this lecture we are going to start about the trophic level. Okay, so what are the trophic level? Generally the first level of the food chain is called as the producer, and it is also called as the first trophic level. Okay, in the food chain we have discussed the first layer, that is generally called as the producer, and this level is also considered as the first trophic level. Okay, so generally it will be considered as the four steps and four level. Okay, each step in the food chain where transfer of the food energy take place is called as the trophic level. एज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट इन द प्रीवियस लेक्चर कि भाई हर एक स्टेप बाय स्टेप में क्या होती है, एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है, कन्वर्जन होती है इनटू द नेक्स्ट लेवल. ओके, तो फर्स्ट लेवल ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कंसिस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर. तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो किस में होती है, वो प्रोड्यूसर के अंदर होती है. देन इट गोज टू द प्राइमरी कंज्यूमर. तो प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर एनर्जी जाएगी. तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे एनर्जी ऊपर पहुंचेगी वो एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ऊपर के लेयर में सबसे ज़्यादा क्या हम लोग को देखने को मिलेगी, लोवेस्ट एनर्जी देखने को मिलेगी. मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को पता चले. ओके, जनरली जो एनर्जी हाई होती है वो प्रोड्यूसर में क्या होती है, हाई होती है. सबसे ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर होती है. जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी, लो होती जाएगी. और सबसे ऊपर वाले स्टेप्स में जहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ पर सबसे ज़्यादा लो एनर्जी होगी. ओके, तो यहाँ पर वही सब लिखा है. द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कंसिस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी कि पहले लेयर में कौन आएगा, प्रोड्यूसर आएंगे. सेकेंड ट्रॉपिक लेवल कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि यहाँ पर है प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर कौन आएगा, हर्बीवोरस आएंगे. द थर्ड ट्रॉपिक लेवल कंसिस्ट ऑफ द सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि हर्बीवोरस को जो खाएंगे वो आएंगे यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर. ओके, और फोर्थ लेवल के अंदर आएंगे टेरिटरी कंज्यूमर. टेरिटरी कंज्यूमर यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जो भी ईट करेंगे वो सेकेंडरी कार्निवोरस जो है वो जनरली फोर्थ लेवल के ऊपर आएंगे. तो जैसे जैसे ऊपर के लेयर में हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी, लो होती जाएगी, सबसे ज़्यादा नीचे हाई होगी. Since the transfer of the food energy decrease at the every trophic level, the number of trophic levels are limited and do not exceed 4 or 5. तो चार और पाँच से ज़्यादा लेवल बढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई भी ऊपर ऊपर चला जाता है जाएगा
तो एक समय ऐसा आएगा कि एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से कोई भी जो लेवल्स है वो जनरली 4 स्टेप्स तक ही हम लोग कंसिडर करते हैं। ओके, यहाँ पर जो है वो ओके जनरली फर्स्ट लेयर जो है वो प्रोड्यूसर है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। इस वजह से उसमें एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। Then primary consumer takes from energy from the producers. Then the secondary consumer will take the energy from the primary consumers. Then the tertiary consumer will take the energy from the secondary consumers. That is why the energy will be divided in the upper portions and getting low by each and every steps. Okay, तो ये बहुत ही ईजी है। ये सारे ट्रॉपिक लेवल्स है। आपको जनरली ये याद रखना है कि कितने लेवल्स है। तो जनरली देर आर 4 लेयर्स। ओके, फर्स्ट लेयर्स में प्रोड्यूसर, सेकंड में प्राइमरी। ये फूड चेन अगर आपको याद होगा तो ये आप लोग इजीली याद रख पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत हार्ड है नहीं। जनरली जो हमारा फर्स्ट प्रोड्यूसर है उसको हम लोग फर्स्ट कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकंड, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम लोग कहेंगे थर्ड लेयर, और सेकेंडरी टेरिटरी कंज्यूमर्स को कहेंगे फोर्थ लेवल। ओके, तो जनरली ये सारी चीजें हैं ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर। देन एनर्जी फ्लो इन द ट्रॉपिक लेवल्स, ये भी हम लोगों ने अभी भी बात की है, बट कैसे एनर्जी जो है वो फ्लो होती है वो हम लोग देखते हैं। जनरली स्टेप बाय स्टेप जो है वो एनर्जी एक में से दूसरे के अंदर कन्वर्जन होती है। ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब अबाउट द 1% ऑफ द सोलर एनर्जी। ये याद रखने की चीज़ है कि भाई ग्रीन प्लांट्स जो है वो 1% ऑफ द सोलर एनर्जी जो है वो उसके ऊपर जो गिरती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। Then the leaves and the stores it as the food energy during the photosynthesis। सिर्फ 1% सोलर एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में करके वो अपना खाना बना लेते हैं। सोच लो कि अगर वो 1% से ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसका ग्रोथ हो पाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1% की सोलर एनर्जी की वजह से वो अपना खाना बना लेते हैं और सारे लेयर्स उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। During the transfer of food energy from one trophic level to the next, 90% of the energy is lost to the environment and only 10% is transferred to the next trophic level। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जैसे ही फूड एनर्जी जो है वो ट्रॉपिक लेवल से एक में से दूसरे के अंदर ट्रांसफर होती है, ओके मतलब कि प्रोड्यूसर से पहले प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर, तो जनरली 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है। 90% एनर्जी जो है वो क्या होएगी, लॉस हो जाएगी एनर्जी के अंदर। ओके, सॉरी लॉस हो जाएगी एनवायरमेंट के अंदर। सो देर इज अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द फूड एनर्जी ट्रांसफर्ड एट द एवरी ट्रॉपिक लेवल बाय 10%। दिस इज नोन एज द 10% लॉ। इसको हम लोग कहेंगे 10% वाला लॉ कहेंगे, क्योंकि हर एक के अंदर क्या होती है 10% एनर्जी अगर मैं मान लूँ कि ट्रांसफर होती है और 90% अगर लॉस भी होती है तो क्या होता है जनरली उसको हम कहेंगे 10% लो कहेंगे। ओके, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क में या 2 मार्क्स के अंदर। उसके बाद बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है। आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये जितना वर्ड हार्ड लग रहा है उतना ये वर्ड हार्ड है नहीं, सिर्फ इसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो हम लोगों को स्टडी करनी है। Okay, generally harmful chemicals like insecticides and pesticides which are used to protect crop from the insects and pests are absorbed by the plant and enter the food chain। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि भाई मान लो कि अगर मेरा फूड जो है, मेरा क्रॉप प्रोडक्शन जो है, आप लोगों ने स्टैंडर्ड 8 के अंदर स्टडी किया होगा। स्टैंडर्ड 8 के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था क्रॉप प्रोडक्शन वाला चैप्टर जो है, वो क्रॉप प्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि भाई हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ों में फर्टिलाइज़र और मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और प्रोडक्शन करने के लिए। तो उसके अंदर क्या होता है कि हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, वो भी हम लोगों ने कहाँ डाल दिए है, अभी ज़मीन के अंदर डाल दिए है। तो वो ज़मीन के अंदर तो डाले ही है, तो वो जनरली गए कहाँ पर है, वो गए हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स में मतलब प्लांट्स क्या है हमारे फूड चेन के अंदर, वो है हमारे प्रोड्यूसर। यानी कि जो प्रोड्यूसर्स है वो क्या है हमारे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जनरली यहाँ पर प्लांट्स है ही। ओके, तो वो हमने क्या किया कि वो प्रोड्यूसर कहते हैं हम लोग उसको फूड चेन के अंदर। तो फूड चेन के अंदर जो प्रोड्यूसर है उसमें मैंने क्या डाल दिया, अभी इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स डाल दिए। क्यों, मुझे पता है कि मैंने ये प्रोटेक्शन के लिए डाला है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है वो देखिए। प्रोटेक्शन तो ज़रूरी है, हम लोग डालेंगे ही डालेंगे, पर उसकी वजह से होता क्या है, since these chemicals are non-biodegradable they get accumulated at every trophic level। तो क्या होता है कि ये जो केमिकल्स हम लोगों ने डाले हैं
प्रोडक्शन के अंदर, प्रोड्यूसर्स के अंदर यानी कि प्लांट्स के अंदर, तो उसकी वजह से जनरली क्या होता है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और वो क्या होंगे, अभी वो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें एक में से दूसरे के अंदर क्या होगी, ट्रांसफर होगी कंटिन्यूअसली। ओके, तो जनरली जो हम लोग भी खाते हैं उसमें भी वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोर्शन जो है उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमारे शरीर के अंदर भी जा रहा है। Since human beings occupy the highest trophic level, the concentration of these harmful chemical is maximum in our body. ये important बात है कि जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं प्रोड्यूसर्स के अंदर, वो धीरे 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 सबसे ज़्यादा कंजप्शन कौन करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं। और वो ह्यूमन बींग्स के अंदर जनरली क्या होता है, सबसे ज़्यादा केमिकल्स की इफेक्ट देखने को मिलती है। इसी वजह से गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है कि भाई पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ही कम कीजिए, या तो करिए ही मत। ओके, जितना हो सके उतना नेचुरल के ऊपर डिपेंडेंट, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट हो कि आप अपने क्रॉप प्रोडक्शन को ग्रो करिए, वरना मत करिए। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को हार्मफुल हो रही है। So generally, the increase in the concentration of harmful chemicals in the bodies of organism at the higher trophic level is called as the biological magnification. It means that the concentration of the harmful chemicals will be increasing in each and every layer, and then it will be goes in our body. So this is called as the biological magnification. यानी कि ये क्या हुआ, मैंने जो डाला था पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स प्लांट्स के अंदर, वो धीरे धीरे पहुंचा मेरी बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर वो फिर क्या करेगा, डैमेजेस करेगा हम लोगों को, बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स देगा हमारे शरीर के अंदर। तो इस वजह से हम लोगों का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो जो पेस्टिसाइड्स या फिर इंसेक्टिसाइड या फिर जो भी केमिकल्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही लो करना चाहिए हम लोगों को। और ये सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की कि भाई जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन लेवल केमिकल्स का बढ़ेगा एट द हायर ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आज के लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे देता हूँ होमवर्क में। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्सप्लेन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। यहाँ तक ही हम लोगों को आज स्टडी करना था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे डेप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, और उसके बाद स्टडी करेंगे सारे लेयर्स के बारे में। ओके, so that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me in the comment section, you can ask me in the WhatsApp, or you can ask me in the Instagram also. I am also available there. Okay, till then, bye bye everyone, see you in the next lecture.